press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು SSLC ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 2021 ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಾವಿದ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಪೇಪರು. ಆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಪೇಪರು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 81 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ದು 40 ಅಂಕಗಳೇ 40 ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಿಮ್ ಕಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 81 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ರಾತ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 दोपहर, बी शाम, ऑप्शन सी दिन, डी प्रकाश ಅಂತ ಇದೆ. तो रात शब्द का विलोम शब्द है दिन ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ दिन राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 82, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಬ್ದ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶ್ರೀಮತಿ, ऑप्शन सी मती, ऑप्शन डी पति ಅಂತ ಇದೆ. श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है श्रीमती. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ಗಿರೀಶ್ ಶಬ್ದ में ಸಂಧಿ है. ಈ ಗಿರೀಶ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಿರೀಶ, तो ಗಿರೀಶ, ಗಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಶಾ, ಗಿರೀಶ ಸಾರಿ ಗಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಈಶ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಗಿರೀಶ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇ ಇದೆ. ಸೊ ಸಂಧಿ ಆಗುವಾಗ ಗಿರೀಶ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ ಬಂದು ಆದೇಶವು ಈ ಕಾರವಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ नंबर 83, गिरीश शब्द में संधि है गुण संधि, ऋण संधि, अयादि संधि, डी दीर्घ संधि ಅಂತ ಇದೆ. तो ऑप्शन डी दीर्घ संधि, गिरीश शब्द में संधि है दीर्घ संधि इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 84, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 84, ರಾಜಮಹಲ್ ಸಮಾಸವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮಹಲ್ ಶಬ್ದ में समास है. ಈ ರಾಜಮಹಲ್ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಾಸ ಇದೆ? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ರಾಜಮಹಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ರಾಜಾ ಕಾ ಮಹಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಜಾ ಕಾ ಮಹಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ನುವಂತಹ कारक चिन्ह लोप होकर दो शब्दों का मेल हुआ है. तो राजमहल शब्द क्या है? तत्पुरुष समास है बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होना, क्वेश्चन नंबर 85, मिलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. क्वेश्चन नंबर 85, मिलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है मिलाना. ऑप्शन डी मिलाना. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. मिलावट, बी मिलन, सी मेल, डी मिलाना ಇದೆ. मिलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है मिलाना. ओके, क्वेश्चन नंबर 86, ಚಾಕು ಡ್ಯಾಶ್ ಫಲ್ ಕಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಕವನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಚಾಕು ಡ್ಯಾಶ್ ಫಲ್ ಕಾಟ ಅಂದ್ರೆ वाक्य के लिए उचित कारक चिन्ह है पर, से, को, में ಅಂತ ಇದೆ. ಚಾಕು से फल काटा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर. ಚಾಕು ಸೇ ಫಲ್ ಕಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇ ಕರೆಂಟ್ ಕಾರಕ್ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಕಾರಕ್ ಏನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಯಾವ ಸಾಧನದಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯ किस साधन से हुआ है इसका पता चलता है. तो ಚಾಕು ಸೇ ಫಲ್ ಕಾಟ, ಸೇ इज राइट आंसर, बी ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. इंटरनेट का मतलब क्या है?
क्वेश्चन नंबर 87 इंटरनेट का मतलब क्या है वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ और ಡಿ ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ क्वेश्चन नंबर 88 पारिवारिक पत्र में प्रायः हम पिता को संबोधित करते हैं व्यक्तिगत पत्र ನಾವು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು व्यक्तिगत पत्र और पारिवारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र और पारिवारिक पत्र ವನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಚುಟಿ ಪತ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ पारिवारिक पत्र माताजी को पिताजी को भाई को बहन को ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ तो पारिवारिक पत्र में हम पिता को संबोधित करते हैं ನಾವು ಪಿತಾಜಿಗೆ ಏನಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹೋದಯ ಇದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇದೆ ಪ್ರಿಯವರ ಇದೆ ಪೂಜನೀಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಹೋದಯ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕಜಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು अपरिचितರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ प्रियवर बराबर वालों के लिए हम संबोधन करते हैं अपने भाई को या अपने मित्र को बड़े भाई को या मित्र को हम प्रियवर कहते हैं और डी को हम पूजनीय अपने माताजी को पिताजी को पूज्य माताजी पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी या पूज्य पिताजी इस प्रकार हम क्या करते हैं संबोधित करते हैं इसलिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए सही उत्तर पारिवारिक पत्र में हम पिता को संबोधन करते हैं पूजनीय ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ तो ನೋಡೋಣ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 रोज एक सेब खाने की कितनी की जरूरत नहीं होगी ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ए व्यायाम की डॉक्टर की सी खाने की तरकारी की ऑप्शन बी डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी 89 ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ क्वेश्चन नंबर 90 अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई थे अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे जलालुद्दीन अरविंदन शमसुद्दीन शिव प्रकाश तो अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे जलालुद्दीन बी अरविंदन सी शमसुद्दीन डी शिव प्रकाश तो इनके चचेरे भाई शमसुद्दीन ऑप्शन सी शमसुद्दीन थे वो रामेश्वरम में एकमात्र अखबारों के वितरक थे ये कलाम जी के कौन थे चचेरे भाई थे क्वेश्चन नंबर 91 पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण है पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण क्या कौन सा है ए वीरता बी ईमानदारी सी होशियारी और डी आलस है बच्चों तो इसमें सही उत्तर होगा पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण ईमानदारी प्रामाणिकता ओके बी इज राइट आंसर ईमानदारी क्वेश्चन नंबर 92 इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भेजा जा सकता है हम इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेज सकते हैं हम इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ऑप्शन ए रकम बी लोग सामान डी समाचार तो हम इंटरनेट बैंकिंग द्वारा यानी बैंकिंग शब्द ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ द्वारा हम रकम भेज सकते हैं रकम ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣದ ರಾಶಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम रकम भेज सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम हम भेज सकते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 93 अब्दुल कलाम जी के बचपन में किस घर में रहते थे अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे झोपड़ी में लोगों के घर में कच्चे घर में पुश्तैनी घर में हम अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे झोपड़ी में रहते थे नहीं लोगों के घर में रहते थे नहीं कच्चे घर में पुश्तैनी घर में तो वो बचपन में पुश्तैनी घर में रहते थे अपने पुश्तैनी घर में रहते थे पुश्तैनी यानी ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನೆ तो ಅವರ पुश्तैनी घर में रहते थे क्वेश्चन नंबर 94 विजयपुरा नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान है ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರಾಜಮಹಲ್ ಗೋಲ್ गुंबज गोपटेश्वर की प्रतिमा जलप्रपात निम्गे ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान है बच्चों बी गोल गुंबज है
क्या है? विजयनगर में गोल गुंबज है। ओके, राजमहल मैसूर, गोमटेश्वर की प्रतिमा, श्रवणबेळगोळ और जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 95, तो क्वेश्चन नंबर 94 के लिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, कौन थी? देखिए, जिनके ताबी, हंसदेव, विजेंद्री पाल, ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ। इस प्रकार आपका क्वेश्चन है। ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂತ। ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಜುನ್ಕೆ ತಾಬಿ। ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಜುನ್ಕೆ ತಾಬಿ, ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು। तो ए इज राइट आंसर 95 ಗೆ। क्वेश्चन नंबर 96, जोग अभी गोकाक जलप्रपात है। जोग अभी गोकाक जलप्रपात है महाराष्ट्र में, केरल में, तमिಳುನಾಡು में, कर्नाटक में। ಈ ಜೋಗ ಅಬ್ಬಿ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪ್ರಪಾತಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ। तो हम कर्नाटक संपदದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ जोग अभी गोकाक शिवन समुद्र कर्नाटक में मनमोहक है, ये कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 96 के लिए डी राइट आंसर ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। क्वेश्चन नंबर 97, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने ऑप्शन ए शत्रुओं पर, बी प्रकृति पर, सी पाताल पर, डी मित्रों पर। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है बच्चों? प्रकृति पर विजय पाई है। आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आधुनिक पुरुष ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया है, प्रकृति पर अपना प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 98, तुलसीदास जी के अनुसार दया किसका मूल है? तो तुलसीदास जी के अनुसार दया ऑप्शन है अभिमान का, सभ्यता का, ईश्वर का, धर्म का। तो तुलसीदास जी के अनुसार दया का मूल है अभिमान, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। ನಾವು दोहेನಲ್ಲಿ होती दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ಅಂತ। तो दया किसका मूल है? धर्म का मूल है, ऑप्शन डी राइट आंसर। सरियाದ ಉತ್ತರ ಟಿ ಇದೆ। ओके, बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? क्वेश्चन नंबर 99, बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? ए बलराम से, बी यशोदा से, सी नंद से, डी ग्वाल मित्रों से। तो बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है। किसके प्रति? किसके प्रति करता है? अपने भाई बलराम के प्रति अपनी माँ के पास आकर वो शिकायत करता है। तो राइट आंसर इज बी यशोदा से। बालकृष्ण किससे शिकायत करता है? अपनी माँ यशोदा से शिकायत करता है। क्वेश्चन नंबर 100, खरीदारी में सावधानी बरतने की सीख मिलती है। क्वेश्चन नंबर 100 अली खरीदारी में सावधानी बरतने की सीख मिलती है। बच्चों, हमने सेकेंड लेसन में कश्मीरी सेब में हमने देखा कि खरीदारी में सावधानी बरतने की सीख मिलती है बसंत की सच्चाई से, अभिनव मनुष्य से, गिल्लू से, कश्मीरी सेब से। कश्मीरी सेब से हम क्या कर सकते हैं? खरीदारी में सावधानी बरतने की सीख हमें मिलती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 101, गिलहरी की समाधि बनाई गई, कहाँ बनाई गई? बरामदे में, सोनजोही की लता के नीचे, बगीचे में, आंगन के बीच में। आपको पता है महादेवी वर्मा ने गिलहरी की समाधि बनाई सोनजोही की लता के नीचे, क्योंकि सोनजोही की लता महादेवी वर्मा को गिलहरी को बहुत प्रिय थी, प्रिय लता थी, इसलिए सोनजोही की लता के नीचे गिलहरी की समाधि बनाई गई है। ऑप्शन इज 101 के लिए बी ऑप्शन सरियादा उत्तरा। बलराम के अनुसार मोल लिया गया है, किससे मोल लिया गया है? तो बालकृष्ण को, ग्वाल मित्रों को, सी नंद बाबा को, डी सुदामा को। बलराम के अनुसार मोल लिया गया है, बालकृष्ण को मोल लिया गया है। एक ऑप्शन ए बालकृष्ण को। तो अपनी माँ के पास आकर बलराम कहता है कि बालकृष्ण को मोल लिया गया है, तुम्हें मोल लिया गया है, तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, बलराम कृष्णನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ। क्वेश्चन नंबर 103, बसंत के घर पर डॉक्टर को ले आता है। बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? अमर सिंह, बी राजकिशोर, सी भीखू, डी प्रताप। तो राइट आंसर ए अमर सिंह। बसंत के घर पर डॉक्टर को ले आता है, अमर सिंह ले आता है। क्वेश्चन नंबर 104, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? ಈಗ
ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ बदलावಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಅಂತ प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा यहाँ पर है वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ई गवर्नेंस द्वारा सोशल नेटवर्किंग द्वारा इंटरनेट बैंकिंग तो प्रगतिशील राष्ट्र बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन बी ई गवर्नेंस द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक परसाई जी दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे क्वेश्चन नंबर 105 परसाई जी दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे खर्च करने मित्रों के साथ जाने पैसे बचाने आराम से जाने परसाई जी दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे क्योंकि पैसे बचाने के लिए 150 रुपए बचाने के लिए वो क्या करना चाहते थे दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे इसलिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है सेकेंड क्लास ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ऑप्शन सी पैसे बचाने के लिए वो जाना चाहते थे क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से व्यंग्य रचना है नीचे दिए गए पाठ के नाम है बच्चों पाठದ ಹೆಸರಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನಾ ಯಾವುದು ईमानदारों के सम्मेलन में मेरा बचपन गिल्लू बसंत की सच्चाई तो ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ईमानदारों के सम्मेलन में ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ಮೇರಾ ಬಚಪನ್ ಆತ್ಮಕಥಾ ಗಿಲ್ಲು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ बसंत की सच्चाई एकांकी आಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचने ऑप्शन ए इज राइट आंसर ईमानदारों के सम्मेलन में क्वेश्चन नंबर 107 ये वचनकार कर्नाटक के प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाज सुधारक थे ಈ ವಚನಕಾರರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ तो ಯಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ರು ಕನಕದಾಸ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಬಸವಣ್ಣ ಕನಕದಾಸ್ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕವಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ बसवಣ್ಣ ಯ कर्नाटक के क्रांतिकारी समाज वचनकार कर्नाटक के प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाज सुधारक थे ये बसवण्णा हमारे कर्नाटक में क्रांतिकारी समाज सुधारक थे क्वेश्चन नंबर 107 राइट आंसर इज डी देश को तुम पर गर्व है ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ಸಿರೋಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು देश को तुम पर गर्व है ऐसा किसने कहा था ऑप्शन ए मेजर कुमार ने विजेंद्र पाल ने किशन पाल ने कर्नल खुल्लर ने तो सरियाद उत्तर देश को तुम पर गर्व है ಹೀಗೆ विजेंद्र पाल को किसने कहा था ऑप्शन डी कर्नल खुल्लर ने कहा था ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ विजेंद्र पाल एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ती है विजेंद्र पाल एवरेस्ट ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ सोनम पुलजर ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ और उनके फोटो निकाले उनके हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया वॉकी टॉकिಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ कर्नल खुल्लर ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೌತ್ ಕೋಲ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ विजेंद्र पाल ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾರೆ तब विजेंद्र पाल को कहते हैं कि देश को तुम पर गर्व है तो कर्नल खुल्लर ने विजेंद्र पाल को कहते हैं देश को तुम पर गर्व है तो राइट आंसर इज डी देश को तुम पर गर्व है ऐसा किसने कहा था कर्नल खुल्लर ने क्वेश्चन नंबर 109 कवि भारत मां से निवेदन करते हैं कवि भारत मां से निवेदन करते हैं ऑप्शन ए जग का रूप बदलने बी सुख संपत्ति देने सी जय प्रदान करने डी स्वतंत्र करने तो कवि अपने भारत माता से निवेदन करते हैं जग का रूप बदल दे हे मां ऑप्शन ए इज राइट आंसर कवि भारत माता से कहते हैं कि जग का रूप बदल दे हे मां कोटि कोटि हम आज साथ में ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ये ऑप्शन इज राइट 110 दिनकर जी के अनुसार मानव का सही पहचान है दिनकर जी के अनुसार मानव का सही पहचान क्या है मानव का सही परिचय क्या है तो दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है ऑप्शन ए नदी सागर पर्वत को लांघना बी पानी विद्युत बाष्प को अपने वश में करना सी मानव के हुक्म पर पवन का ताप बदलना डी मानव मानव के बीच में स्नेह का बांध मानना
राइट आंसर इज डी, मानव मानव के बीच में स्नेह का बांध बांधना दिनकर जी के अनुसार मानव की सही पहचान है। क्वेश्चन नंबर 111, मातृभूमि कविता के कवि है। तो मातृभूमि कविता के कवि कौन है, इस प्रकार पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111, मातृभूमि कविता के कवि है महादेवी वर्मा, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी भगवती चरण वर्मा, डी तुलसीदास। मातृभूमि कविता के कवि बहुत आसान है, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पोएम भगवती चरण वर्मा। सी ऑप्शन इज राइट, 111 ये सी ऑप्शन राइट आंसर। 112, तुलसीदास जी किस शाखा के कवि है? बच्चों आपको सब पता है तुलसीदास जी, ए ऑप्शन कृष्ण भक्ति, बी प्रेम मार्ग, सी निर्गुण भक्ति, डी राम भक्ति। तुलसीदास जी ರಾಮ್ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾಕ್ಕೆ ಕವಿ है, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। 112ಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ सरियाद उत्तर ಇದೆ। समय की पहचान कविता में कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? समय की पहचान कविता में कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? आत्मा पर, बी ईश्वर पर, सी माँ बाप पर, डी शारीरिक बल पर। तो सरियाद उत्तर अपनी आत्मा पर विश्वास करने को कहते हैं, तो ऑप्शन ए आत्मा पर। क्वेश्चन नंबर 114, तुलसीदास जी संत की तुलना करते हैं। संत की तुलना इन्हें कंपैरिजन करते हैं विद्या से, ऑप्शन बी साहस से, सी हंस से, डी मोर से। तुलसीदास जी संत की तुलना कंपैरिजन करते हैं हंस से, ऑप्शन सी राइट आंसर। संत हंस गुण गहिंपया परिहरिवारि विकार। सो तुलसीदास जी संत की तुलना करते हैं हंस से। क्वेश्चन नंबर 115, सियाराम शरण गुप्ता जी के अनुसार बहाने बनाने का प्रमुख कारण है ए कमजोरी, बी आलस, सी अहंकार, डी ज्ञान। सियाराम शरण गुप्ता जी के अनुसार बहाने बनाने का प्रमुख कारण है बच्चों ऑप्शन बी आलस। 116, बालकृष्ण का रंग है ए काला, बी पीला, सी लाल, डी गोरा। बालकृष्ण का रंग कैसा था? काला था, ए ऑप्शन काला। असफलता एक चुनौती है, कविता को पूर्ण कीजिए। असफलता एक देखो और सुधार करो, कभी हार नहीं होती, इसे स्वीकार करो, जय जयकार नहीं होती। तो असफलता एक चुनौती है, ऑप्शन सी इसे स्वीकार करो इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, इसे सी ऑप्शन इसे स्वीकार करो सरियादा उत्तर। 118, शनिचर का अर्थ है। शनिचर का अर्थ क्या है? धीमी गति से चलने वाला, तेज चलने वाला, चक्कर लगाने वाला, काले रंग वाला। तो राइट आंसर इज शनिचर का अर्थ होता है ए धीमी गति से चलने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 119, सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए यौवन में, बचपन से ही, बुढ़ापे में, विवाह के बाद। तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सत्य के बारे में कहते हैं कि सत्य की बोलने की आदत हम बचपन से ही डालनी चाहिए। सत्य बोलने की आदत हम बचपन से ही डालनी चाहिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ಗೆ बी ऑप्शन सरियाಗಿದೆ। 120ನೇ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? पेड़ में, पेड़, बी झूले, सी फूलदान, डी लिफाफे। गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? लिफाफे के भीतर बंद रहता था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದೆ। तो 120ನೇ क्वेश्चन ಗೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್। ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ನೀವು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಥವಾ 40ಕ್ಕೆ 40 ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು। ಗುಡ್ ಲಕ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।